بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان یوسف۔ حضرت یوسف جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت، سب، تأمل اور پاک بازی وغیرہ ہر ایک خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف کو جب اس کا اندازہ ہوا تو اس سے کنار کشی اختیار کرتے رہے۔ یوں زلیخا خود بھی نہایت حسین جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عزیزی، پریشانی اور یوسف کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا، تمام شہر تجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھ سے کنار کشی اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف نے کہا، عزیز مصر میرا سرپرست اور محسن ہے، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عذر نہ سنا اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا، اگر تم میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور زر و جواہرات خیرات کر دوں گی تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو سکے۔ خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بحث مباحثہ چلتا رہا۔ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برائی سے بچے رہے اور زلیخا سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے بھاگ لیے۔ زلیخا بے توانا پیچھے دوڑی اور یوسف کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ حضرت یوسف تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر سے برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف نے کہا، میں بے گناہ ہوں، کسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف کی سچائی اور پاک بازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا، وہ درگزر سے کام لے۔ اس نے پسند نہ کیا کہ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ صحیح ہے، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے۔ مصر کی عورتیں زلیخا کو طعنے دینے لگی اور کہنے لگی، اسے کیا ہو گیا ہے جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے، اور غلام ہے کہ اسے خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکام کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شرکت ہوئی۔ اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے سے حضرت یوسف کو بلایا۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف پر پڑی تو حیران ششد رہ گئی اور ان کے منہ سے نکلا، ما ھذا بشر،
इन हाजा इल्ला मलकून करीम, अरे ये तो इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है भला। जुलेखा ने कहा, ये है इसकी मोहब्बत जिसका तुम मुझे ताना दिया करते हो। जुलेखा ने कहा, हमने इस पर डोरे डाले थे, ये अगर मेरी बात न मानेगा तो लाजमन कैद में पड़ेगा। कोराह पर सारी औरत अपने घर को वापस हो गई, मगर दो औरतें जो बड़ी चर्व ज़बान थी रुकी रही। उनका इरादा था कि यूसुफ लाकर रहेगी। उन्हें ज़ुबानी और मीठी बातों पर बड़ा भरोसा था। वो इस बात को नहीं जानती थी कि यूसुफ वो पाक बाज शहबाज है जो हवा और हवस के जाल में नहीं फंस सकता। एक ने जाकर यूसुफ से कहा, तू जुलेखा की बात क्यों नहीं मानता? तू अगर आफताब है तो वो किसी चांद से कम नहीं। तेरी भलाई इसी में है कि जुलेखा को नाउम्मीद न कर। जाकर हज़रत यूसुफ ने कुछ ऐसी नसीहत फरमाई कि वो औरत हैरान और ख़ामोश होकर वापस आ गई। इसके बाद दूसरी औरत ने हज़रत यूसुफ से कहा, अगर तूने जुलेखा की आरज़ू पूरी न की और अपनी हट पर कायम रहा तो जल्द ही कैद खाने में डाल दिया जाएगा। हज़रत यूसुफ पर इस डराने धमकाने का कुछ भी असर न हुआ। ये औरतें भी नाकाम वापस हो गई। इन तमाम बातों से हज़रत यूसुफ ने तंग आकर जनाब इलाही में फ़रियाद की, खुदावंदा, जिस चीज़ की तरफ ये औरतें मुझे बुलाती है उससे अच्छा तो मेरे लिए कैद खाना ही होगा। इस गुलिस्तान से बेहतर तन्हाई है। वो दोनों औरतें जिन्हें खुद भी हज़रत यूसुफ की मोहब्बत हो गई थी, जुलेखा के पास गई और कहा, यूसुफ को चंद रोज़ के लिए कैद खाने में भिजवा दो। इस तरह मुमकिन है कि वो इस ऐशो आराम और साज सामान की कदर जाने और कैद खाने की वहशत में उसे तेरी कदर मालूम हो। जुलेखा को ये बात पसंद आई। उसने अजीज़ मिस्र से कहा, इस इब्रानी ग़ुलाम ने मुझे तमाम खल्क में रुस्वा किया है, इसे लाजमन कैद खाने में भेज दो ताकि लोग ये जानें कि मेरा दामन इस गुनाह से पाक है और कसूर अगर है तो ग़ुलाम का। अजीज़ ने अपने ख़ास लोगों से मशवरा किया। सब ने जुलेखा की राय से इत्तिफाक किया। इस तरह हज़रत यूसुफ महल से कैद खाने पहुँचे। हज़रत यूसुफ को बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि अब ये फ़रेब और फितने से बिल्कुल महफूज थे। कैदी यूसुफ। हज़रत यूसुफ के कैद खाने में आने से दूसरे कैदियों की जान में जान आई और वो खुशी से नाच उठे। हज़रत यूसुफ को एक ख़ास कमरे में कैद कर रखा गया। हज़रत यूसुफ जब इबादत से फारिग होते थे तब कैदियों से उनका हाल पूछते और उन्हें तसल्ली देते और उन्हें दीन और इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें सुनाते। कैदी उनकी सोहबत से बहुत खुश रहते कि कैद खाने की मुसीबत तक को भूल जाते। हज़रत यूसुफ एक लंबे अरसे तक कैद खाने में रहे। जब अल्लाह ने उन्हें कैद से निकालना चाहा तो गैब से इसके असबाब मुहैया हो गए। कहते हैं कि बादशाह रूम ने अपना एक एलची मित्र भेजा और उसे माल और जवाहरात और थोड़ा सा जहर दिया था ताकि वो मिस्र के बादशाह के किसी मुसाहिब को माल देकर इस बात पर आमादा करे कि बादशाह को किसी बहाने से जहर खिलाकर हलाक कर दे। वो एलची मिस्र पहुंचा और बादशाह के ख़ास बावर्ची और शराबदार को अपना दोस्त बनाया और बड़े राजदाना अंदाज में उससे अपना मकसद बयान किया। शराबदार ने तो साफ इनकार कर दिया कि वो किसी कीमत पर भी बादशाह को जहर नहीं दे सकता, लेकिन शाही बावर्ची दौलत के लालच से सही रास्ते से फिर गया और बादशाह को जहर देने का वादा कर लिया। अभी बादशाह को वो जहर दे नहीं सका था
कि किसी तरह इस साजिश का राज खुल गया और बादशाह को ये मालूम हुआ कि शराबदार और शाही बावर्ची उसे जहर देने की स्कीम में शरीक थे, लेकिन इन दोनों में से किसी खास शख्स पर गुनाह साबित नहीं होता था। इसलिए बादशाह ने दोनों को कैद खाने में भेज लिया। ये दोनों कैदी जब जेल खाने पहुँचे और वहाँ हज़रत यूसुफ की नशीनी और सोहबत उन्हें हासिल हुई तो वो बादशाह को मुसाहबत भूल गए और हज़रत यूसुफ की खिदमत में रहने लगे। एक रोज़ इन दोनों ने सोचा कि यूसुफ हर एक कैदी को खुशखबरी देता है और हर एक के ख्वाब की ताबीर करता है और हर एक की उलझनों को दूर करता है, हमें भी आ जाना चाहिए। फिर वो दोनों हज़रत यूसुफ की खिदमत में पहुँचे और एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं बादशाह के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर पर रोटियां का पान है और चिड़िया पंजे मार कर खा रही है। उन दोनों ने कहा, ए यूसुफ, हम तुम्हें नेक मर्द समझते हैं, तुम हमारे ख्वाब की ताबीर बताओ। हज़रत यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें मिलता है उस खाने के आने से पहले मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर दूंगा। ये उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई है। मैंने उन लोगों का रास्ता छोड़ दिया है जो अल्लाह को नहीं मानते। मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब का रास्ता अख्तियार किया है। हमारे लिए ये सही नहीं हो सकता कि किसी चीज़ को खुदा का शरीक ठहराए। ये खुदा का फजल है हम पर भी और लोगों पर भी, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं होते। ए कैद खाने में मेरे दोनों साथियों, क्या कई आका अच्छे हैं या एक खुदाए गालिब? तुम उसके सिवा जिनकी भी पूजा करते हो वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी। हुक्म तो बस अल्लाह ही का है। उसका हुक्म है कि उसके सिवा किसी की बंदगी न करो। यही सही और सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। इसके बाद हज़रत यूसुफ ने कहा, ए कैद खाने के मेरे साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि 3 दिन के बाद साकी और शराबदार कैद से छुटकारा पाकर फिर अपने मोहदे पर पहुंच जाएगा और शाही बावर्ची को 3 दिन के बाद यहाँ से निकालकर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और चिड़िया उसके सर का मगज़ खाएगी। हज़रत यूसुफ ने कहा, हो चुका वो जिनके बारे में तुम पूछते थे। फिर साकी से कहा, जब तू दोबारा अपने ओहदे पर पहुँचे और बादशाह की कुर्बत तुझे हासिल हो तो मुनासिब मौका देखकर बादशाह से कहना कि एक इब्रानी ग़ुलाम कैद खाने में पड़ा है और दुनिया के आराम और फ़ायदों से महरूम और मायूस है। साकी ने हज़रत यूसुफ से वादा किया कि वो ज़रूर बादशाह सलामत से इसका ज़िक्र करेगा। 3 दिन के बाद जो बात पूरी हो चुकी थी वो ज़हूर में आई। एक को सूली पर लटका दिया गया और साकी को उसका ओहदा दोबारा अता हुआ, लेकिन वो ये भूल ही गया कि बादशाह से हज़रत यूसुफ की ज़िक्र करें। इस तरह हज़रत यूसुफ और भी चंद साल तक कैद में रहे।